Hello students, beta in this video we are going to proceed our numericals of unit 7th dual nature of matters and radiations type A start कर रहे हैं बेटा numericals दी. Type A is related to Einstein's photoelectric equation. Einstein's photoelectric equation. ਆਇਨਸਟਾਈਨਸ ਫੋਟੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਵਿੰਗ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਾਈ ਨੋਡ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਿਊ ਨੋਡ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵੇਵਲੈਂਥ ਲੈਮਡਾ ਨੋਡ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬੇਟਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਐਂਡ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਫੋਟੋਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਫੋਟੋਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋਨ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫੋਟੋਨ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ some part is used for ejecting itself from the surface ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ and remaining appear in the form of kinetic energy ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਸਟ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਫੋਟੋਨ 'ਚ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that energy is used in two parts work function plus kinetic energy ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ h nu minus nu node is equal to kinetic energy तीसरी इक्वेशन असी बनाई सीगी एच सी 1 by लैमडा माइनस 1 by लैमडा नो अच्छा इन्हां तिन्ना फार्मूलियां च असी जद मर्जी काइनेटिक एनर्जी की जगह ई वी नोड यूज़ कर सकते हैं वी नोड इज़ नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोड नूं असीं की बोलदे सीगे स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल ठीक है एच इज़ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू थोनों पता ही है 6.6 इंटू 10⁻34 ठीक है बेटा तो जो तुसी इक्वेशनस लगाओगे तो ख्याल रखना भी या सारे SI सिस्टम च होण या सारे CGS सिस्टम च होण मतलब जे एनर्जी जे तुसी SI सिस्टम च लै रहे हो जाउल्स च तो वर्क फंक्शन भी जाउल्स च होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी भी जाउल्स च होनी चाहिए जे जाउल्स च नहीं है ये अर्गस च है तो आ भी दोनों अर्गस च होने चाहिए ने जे ये ईवी च है तो आ भी ईवी च होने चाहिए ने मतलब तिन्ना चीज़ों के आप वैसे मेनली आही इक्वेशन यूज़ करांगे बहुत घट चांस होएगा भी आप दोनों यूज़ करिए आप इस इक्वेशन तो अपना फार्मूला बनाया करांगे बट बी केयरफुल जो असी आ इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं तो ऑल द थ्री हैव सेम यूनिट्स ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਸੇਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਜਾਊਲਸ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਈਵੀਸ 'ਚ ਹੋਣ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1.6 10⁻19 ਜਾਊਲਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਈਵੀ ਤੋਂ ਜਾਊਲਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆਹ ਟਰਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਊਲਸ ਤੋਂ ਈਵੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਊਲਸ ਤੋਂ ਈਵੀ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟਰਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਾफ़ੀ यूज़ ਹੋਏਗਾ ठीक है एक आप कंसैप्ट पिक कर लें भी फोर फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट टेक्स प्लेस फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट की कंडीशन है फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन नालों या ज़्यादा या इक्वल दूसरा फोटोन की फ्रीकुएंसी थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी नालों या ज़्यादा या इक्वल तीसरा फोटोन की वेवलैंथ है ना थ्रैशोल्ड वेवलैंथ नालों घट होनी चाहिए वेवलैंथ के इनवर्स है उल्टा है तो बी केयरफुल तिन्ना चो कोई भी लगता हो फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन होएगी फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन होएगी
ਅਗਰ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੋਟੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਫੋਟੋਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਫੋਟੋਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ, ਜਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪ ਏ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਬੇਟਾ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਈਵੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਨ ਈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 10⁻14 ਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 10, 20, 30। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗਾ 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6, -4, 8, 30, 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੇ -4। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਏ, ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਗਿਵਨ ਇਨ ਦਾ ਫਿਗਰ is the graph between frequency and maximum kinetic energy of emitted photoelectrons. Find the value of first part threshold frequency find करनी है, second part find the value of threshold frequency and second part है work function from the graph. ग्राफ तो ही वर्क फंक्शन करना है। ठीक है, वैसे आप अदर वर्क फंक्शन के फार्मूले डिस्कस करने रह गए अपने। वर्क फंक्शन का फार्मूले दो होंगे ने, एक एच न्यू नोड, एक वर्क फंक्शन का फार्मूला होंगे एच सी बाय लैम्डा नोड। दीज आर द फार्मूलाज ऑफ वर्क फंक्शन। ओके, चलो फिलहाल आपां नूं ग्राफ दे विच प्लैंक्स क्वेश्चन च प्लैंक्स कॉन्स्टेंट मैंशन नहीं है, एच की वैल्यू गिवन नहीं है, अपने वालों पिक नहीं करनी। ठीक है, ग्राफ तो तुसी थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी करनी है, ग्राफ तो वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है। बेटा थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस दे इक्वल होंदी है? वैन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैन स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होंदा है। काइनेटिक एनर्जी दा फार्मूला ईवी नोड, काइनेटिक एनर्जी जीरो होंदी है। दैट मीनस जदों काइनेटिक एनर्जी जीरो है ना, जदों काइनेटिक एनर्जी जीरो है उस वक्त की फ्रीक्वेंसी नूं तुसीं थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह सकते हो। काइनेटिक एनर्जी जीरो देखो, काइनेटिक एनर्जी हैगी है अलॉन्ग वाई एक्सिस, है ना, काइनेटिक एनर्जी हैगी अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड काइनेटिक एनर्जी ग्राफ के उपर जीरो कित्थे बन रही है? उरे तो काइनेटिक एनर्जी हैगी, देखो बेटा बी पॉइंट ते कितनी है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है ए टी वी। एट पॉइंट ए पॉइंट ते काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। सो देयरफॉर एट पॉइंट ए पॉइंट ते काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इस करके ए पॉइंट की फ्रीक्वेंसी नूं थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलांगे। ए पॉइंट ते फ्रीक्वेंसी है 10 इंटू 10⁻14, 10 इंटू 10⁻14 बन गई 10⁻15 हर्ट्स। ठीक है, हुण फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सैकेंड पार्ट उन्होंने वर्क फंक्शन किया है। वर्क फंक्शन जो किसी स्टूडेंट ने एवें कढ़ना है, एवें भी कढ़ सकते हैं। एच न्यू नोड, एच की वैल्यू पुट करके 6.6 10⁻−34, न्यू नोड अपने को आ चुका है 10⁻15, आंसर आ जाएगा। एवें कढ़ना एवें कढ़ लियो। ठीक है, पर टीचर्स इस चीज़ को कई बार गलत कर देंगे ने, क्यों? क्योंकि थोड़ा एच की वैल्यू गिवन नहीं हैगी क्वेश्चन च, एच की वैल्यू गिवन नहीं है तो असी ग्राफ तो वर्क फंक्शन किमें कढ़ांगे? सुन लो बेटा, ग्राफ तो भी वर्क फंक्शन निकलता है। ग्राफ तो वर्क फंक्शन किमें निकलता है? हुण
ਆਇਨਸਟਾਈਨਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਇਨਸਟਾਈਨਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is equal to work function plus kinetic energy। ਫੋਟੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ h ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 0 ਹੋਵੇ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 0 ਤਾਂ 0 ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਲਸ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆ ਦੇਖੋ ਕੰਕਲੂਜ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 0 ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 30, नीचे आई जाओ आई जाओ आई जाओ 20 हो गई, एट पॉइंट ए ते पहुँच के 10 हो गई, होर नीचे जाओ, है ना। आ सी पॉइंट ते एट पॉइंट सी फ्रीकुएंसी कितनी बन गई 0, क्योंकि सी पॉइंट वाई एक्सिस ते है ना, वाई एक्सिस के उपर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होंदा हुंदा, एट वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0 होंदा हुंदा बेटा। तो एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी फ्रीकुएंसी 0 है, फ्रीकुएंसी 0 है तो सी पॉइंट ते काइनैटिक एनर्जी देखियो कितनी है, एट पॉइंट सी काइनैटिक एनर्जी कितनी है -4 EV, -4 EV इन्नी काइनैटिक एनर्जी है। तो वर्क फंक्शन कितना होएगा बेटा, जो फ्रीकुएंसी 0 होंदी है दैन वर्क फंक्शन नैगेटिव ऑफ काइनैटिक एनर्जी होंदा, नैगेटिव ऑफ -4 EV कितना बन जाएगा बेटा +4 EV, इन्ना आ जाएगा वर्क फंक्शन 4 EV। एग्रीड। एवें तुसी ग्राफ तो वर्क फंक्शन कढ़ सकते हो। तुहानूं वर्क फंक्शन कढ़ना सिखाता मैंने ग्राफ तो भी वो पॉइंट ले लिया करो जिस पॉइंट ते फ्रीकुएंसी 0 है, जिस पॉइंट ते फ्रीकुएंसी 0 होवे तो वर्क फंक्शन काइनैटिक एनर्जी दे नैगेटिव दे इक्वल हुंदा हुंदा। वैन फ्रीकुएंसी इज इक्वल टू 0 दैन वर्क फंक्शन इज इक्वल टू नैगेटिव ऑफ काइनैटिक एनर्जी। तो फ्रीकुएंसी 0 किस पॉइंट ते लाई करदा सी बेटा सी पॉइंट ते, है ना। सी पॉइंट ते से फ्रीकुएंसी 0 है, काइनैटिक एनर्जी देख ली कितनी है, एट पॉइंट सी फ्रीकुएंसी 0 काइनैटिक एनर्जी इज -4 EV, है ना। वैल्यू पुट करके आ गया वर्क फंक्शन। क्लीयर। एवें तुसी ग्राफ तो वर्क फंक्शन फाइंड आउट कर सकते। क्लीयर। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीगा ये, ओके इंपोर्टेंट सीगा। नैक्सट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड तुसी करोगे सेम है, बस इन्ना का फर्क है भी वो क्वेश्चन फ्रीकुएंसी ते स्टॉपिंग पोटेंशियल च है, फ्रीकुएंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल च, ठीक है। इत्थे काइनैटिक एनर्जी नहीं दी हुई, काइनैटिक एनर्जी दी जगह की दिता हुआ बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल पता चल गया ਉਹਨੂੰ E ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਲਿਖ ਤਾਂ ਸਕਦੇ। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਆਹ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸਟॉपिंग पोटेंशियल ਨੋਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ स्टॉपिंग पोटेंशियल ਨੂੰ E ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ फाइंड आउट कर ਸਕਦੇ। सेम यही कंसैप्ट लगेगा, इसी तरीके नाल करोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी तुसी, ठीक है। नाउ वी मूव टू फर्दर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, when light of wavelength 400 nanometer is incident on the cathode of photocell, किन्ने wavelength दी light fall कर रही है 400 nanometer, the stopping potential recorded is 6 volt, उस वक्त stopping potential है 6 volt। if the wavelength of light is increased to 600 nanometer, कहते अगर wavelength 600 nanometer करती then calculate the new stopping potential V01
V02 ये फाइंड आउट करना है ना। दोनों बार देखो सरफेस सेम है, सरफेस कहते जो λ1 लाइट स्ट्राइक करवाने फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है 6 वोल्ट। जे असी λ2 स्ट्राइक करवाइए लाइट λ2 फिर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा ये फाइंड आउट करना। अच्छा क्योंकि सरफेस सेम है थोड़ा दसिया होया भी जो सरफेस सेम होवे है ना तो सरफेस का वर्क फंक्शन फ्रीकुएंसी एंड वेवलेंथ तीनों चीज़ां सेम रहेंगी। ठीक है बेटा। अच्छा ये अपन लैमडा दी फॉर्म च दिता होया ना क्वेश्चन तो आप आइनस्टाइनस जी इक्वेशन है वो लैमडा वाली ले लें। लैमडा वाली इक्वेशन अकॉर्डिंग टू आइनस्टाइनस इक्वेशन HC 1 by lambda minus 1 by lambda नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी की जगह असी की यूज़ कर लेंगे EV नॉट बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड। ठीक है तो इतों आप दो फॉर्म दो इक्वेशंस बना लेंगे एक λ1 नाल H कॉन्सटेंट C कॉन्सटेंट 1 by λ1 माइनस 1 by λ नॉट इज इक्वल टू EV नॉट 1। एक बन जाएगी सैकेंड इक्वेशन λ2 की फॉर्म HC 1 by λ2 माइनस 1 by λ नॉट EV नॉट 2। क्लियर बेटा, कोई कन्फ्यूजन समझ आ गया ना। इतों देखो हम इनू एवं लिख लो HC by λ1 माइनस HC by λ नॉट EV नॉट 1 HC by λ2 माइनस HC by λ नॉट EV नॉट 2। ठीक है दोनों इक्वेशंस जो असी EV नॉट 2 फाइंड आउट करना है ना। दोनों को सबट्रैक्ट कर दो सबट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशंस ये आ जाएगा HC by λ1 है ना माइनस HC by λ2 ये नाल ये क्योंकि जो आप वो करांगे ना सबट्रैक्ट तो ये कट्टिया जाएगा ये आ जाएगा फिर अगे EV नॉट 1 माइनस EV नॉट 2। देखो इस राइट हैंड साइड चो राइट हैंड साइड सबट्रैक्ट करती ये माइनस ये आ गया ये माइनस ऑफ माइनस ये प्लस बन जाएगा ना ये कट्टिया जाएगा ये माइनस का रह जाएगा ये प्लस का हो जाएगा कट्टिया जाएगा। राइट हैंड साइड चो राइट हैंड लैफ्ट हैंड साइड चो लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चो राइट हैंड साइड इतों EV नॉट बस इन्हों चो HC कॉमन कर लो बेटा 1 by λ1 माइनस 1 by λ2 है ना EV नॉट 1 है 6 वोल्ट EV नॉट 2 फाइंड आउट करना है। सच EV नॉट 1 है ई की वैल्यू तो रखनी पेगी ना E कॉमन कट के इधरली साइड ही ले जाओ है ना इतों E कॉमन कढ़िया दूसरी साइड E इधर चला गया। ठीक है बस इनू सॉल्व कर लो बेटा H की वैल्यू थोड़ा पता है C की वैल्यू पता है E की वैल्यू पता है λ1 पता है λ2 पता है ये सॉल्व कर लोगे सॉल्व करके इनू उधर ले जाओगे V नॉट 2 उधर ले आऊँगा V नॉट 2 उधर आ जाएगा 6 माइनस आ वाली सारी टर्म इतने पुट हो जाएगी रिजल्ट आ जाएगा। समझ गए कोई कन्फ्यूजन ईजिली वैल्यूज पुट करो कैलकुलेशंस थोड़ी जी लंबी है मैंने पता है। H की वैल्यू पुट करो C स्पीड ऑफ लाइट पुट करो E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 λ1 इनू मीटर्स कन्वर्ट कर लियो यार 400 नैनोमीटर है इट इज़ इक्वल टू 400 इंटू 10⁻⁹ मतलब 4 इंटू 10⁻7 मीटर ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻7 मीटर। ठीक है ये वैल्यूज पुट करोगे ना उरे सॉल्व कर लियो रिजल्ट आ कढ़ लियो बेटा थोड़ी कैलकुलेशन वड्डी पेगी बट क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा थोड़ा। ठीक है दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th है बेटा इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 412.5 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ द मेटल गिवन बिलो विच वन कितनी वेवलेंथ की लाइट दी हुई है 412.5 नैनोमीटर
412.5 10⁻⁹ ਨੈਨੋਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10⁻⁹ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਫॉल ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚ ਵਨ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਾਈ। ਸਰਫੇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? 4 ਸਰਫੇਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਰਾਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ। ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਾਈ ਨੋਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਫਾਈ ਨੋਡ ਫॉर ਸੋਡੀਅਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1.92 EV। फाई नोड फॉर पोटाशियम दिता है 2.15 EV। फिर वर्क फंक्शन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ 3.20 EV। फिर वर्क फंक्शन ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੋਲੀਬੈਡਨਮ ਦਾ 4.17 EV। ਇਹ 4 ਸਰਫੇਸਿਸ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ ਲਾਈਟ ਫॉल ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ EV 'ਚ ਹੈ ਨਾ, EV 'ਚ ਨੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਤੋਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਐਨਰਜੀ ਕੱਢ ਲਓ ਫੋਟੋਨ ਦੀ, ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਫੋਟੋਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ HC/λ। H ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 6.6, 10⁻34, C ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 × 10⁸8, ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 412.5 10⁻⁹। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਆਏਗੀ ਇਹ ਜਾਊਲਸ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? EV 'ਚ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਊਲਸ 'ਚ ਬਦਲ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਬਦਲ ਲਓ? EV 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ EV ਤੋਂ ਜਾਊਲਸ 'ਚ ਬਦਲਣਾ, 4 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਜਾਊਲ ਨੂੰ EV 'ਚ ਬਦਲ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 1.6 10⁻⁹ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ EV 'ਚ ਲੈ ਜਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ SI ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ SI ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ? SI। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿਸ 'ਚ ਆਏਗਾ? ਜਾਊਲਸ 'ਚ। ਜਾਊਲਸ ਨੂੰ EV 'ਚ ਬਦਲ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ 1 EV 1.6 10⁻⁹ ਜਾਊਲਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਊਲਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ EV 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਰਮ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ EV 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ। ਜਿਸ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਆਏਗੀ, ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਔਨ ਸੋਲਵਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 3 EV ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 3 EV ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, 3 EV ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ 3 EV ਹੈ, ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ 1.92 EV ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਨਰਜੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੋਲੀਬੈਡਨਮ ਦਾ ਵੀ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਿਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਐਨਰਜੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। Clear? This is your question number 4th. Now we further move to question number 5th.
यस बेटा। क्वेश्चन नंबर 5th, the electric field associated with the monochromatic beam of light becomes zero. इलैक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है कितनी बार? 2.4 इंटू 10⁻15 टाइम्स इन 1 सेकेंड। इलैक्ट्रिक फील्ड किसी लाइट का बेटा, लाइट इज़ एन इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव। ईएम वेव्स आप पढ़ते हैं, ईएम वेव्स चलते। चलो, इलैक्ट्रिक फील्ड पहला इंक्रीज होंदा सी, फिर डिक्रीज, फिर बिकम्स ज़ीरो, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर बिकम्स ज़ीरो। जो इलैक्ट्रिक फील्ड 2 बार ज़ीरो होएगा तो एक वेवलेंथ पूरी हो जाएगी, दैट कंप्लीट्स 1 वेवलेंथ, है ना। देखो, और वो इलैक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होया, इंक्रीज होया, है ना, फिर पूरे पहुंच के डिक्रीज होया, फिर ज़ीरो हो गया, एक बार ज़ीरो हो गया, फिर इंक्रीज होया, मैक्सिमम होया, फिर डिक्रीज होया, फिर ज़ीरो हो गया, तो एक वेवलेंथ पूरी होगी। 1 क्रेस्ट एंड 1 ट्रफ इज़ नोन एज 1 वेवलेंथ। मतलब जे इलैक्ट्रिक फील्ड 2 बार ज़ीरो होंदा है, 2 बार ज़ीरो, तो एक वेवलेंथ बनती है। तो अपन लिख लो भी वैन इलैक्ट्रिक फील्ड बिकम्स ज़ीरो 2 टाइम्स then wavelength form is 1 लैम्डा। समझ आया मैं की लिखा? जो इलैक्ट्रिक फील्ड 2 बार ज़ीरो होंदा है, वैन इलैक्ट्रिक फील्ड बिकम्स ज़ीरो 2 टाइम्स, वैन इलैक्ट्रिक फील्ड बिकम्स ज़ीरो 2 टाइम्स दैन एक वेवलेंथ बनती है। जे इलैक्ट्रिक फील्ड एक बार ज़ीरो होएगा 1 टाइम, फिर वेवलेंथ बनेगी 1/2 2 यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, फिर हाफ वेव बनेगी, हाफ लैम्डा वाली। इफ दिस इज़ 1 लैम्डा तो दिस इज़ हाफ लैम्डा, फिर इन्नी बनेगी, हाफ वेव बनेगी, मतलब इनू लैम्डा कट दो, फिर दैन वेवलेंथ बिकम हाफ। एंड व्हेन इलैक्ट्रिक फील्ड बिकम ज़ीरो दिस टाइम 2.4 इंटू 10⁻15 टाइम्स, फिर वेवलेंथ कितनी बनेगी? हाफ इंटू 2.4 10⁻15, मतलब कितनी बनी? 1.2 इंटू 10⁻15। इन्नी वेवलेंथ्स बनिया कितने टाइम च? इन देखो, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड च इन्नियां वेवलेंथ्स बननगियां। इन्ना कंसैप्ट समझ आया थोड़े कि नहीं समझ आया बेटा? दसो। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन च उन्होंने कहा भी इलैक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो बनता है, इन्नी बार ज़ीरो बनता है इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो हम आप इलैक्ट्रिक फील्ड की नॉलेज से चलते हैं। ईएम वेव्स ਆਪਾਂ ने पढ़िया ਸੀਗਾ भी इलैक्ट्रिक फील्ड जो लाइट ट्रैवल करती होंगी है, वैन लाइट ट्रैवल्स तो इलैक्ट्रिक फील्ड एंड मैगनैटिक फील्ड चेंज होंगे ने। मैगनैटिक फील्ड का तो रोला ही नहीं है, इतने क्वेश्चन च गिवन ही नहीं, तो आप मैगनैटिक फील्ड बनाया भी नहीं। इलैक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलैक्ट्रिक फील्ड बनाया। ईएम वेव ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रिक फील्ड पहला इंक्रीज ਹੁੰਦਾ फिर डिक्रीज दैन बिकम ज़ीरो, फिर इंक्रीज एंड दैन डिक्रीज बिकम ज़ीरो। तो एक वेवलेंथ बन गई, एक क्रैस्ट एंड एक ट्रफ बन गई, एक वेवलेंथ। मतलब जे इलैक्ट्रिक फील्ड 2 बार ज़ीरो होंदा, जे इलैक्ट्रिक फील्ड 2 बार ज़ीरो होएगा तो एक वेवलेंथ बनेगी। जे बेटा इलैक्ट्रिक फील्ड 2 बार ज़ीरो होएगा तो एक वेवलेंथ बनेगी। जे इलैक्ट्रिक फील्ड एक बार ज़ीरो होएगा तो हाफ वेवलेंथ बनेगी। जे इलैक्ट्रिक फील्ड इन्ने बार ज़ीरो होएगा तो कितनियां वेवलेंथ्स बननगियां वो फाइंड कर लिया यूनिटरी मैथड लगा के। इन्नियां वेवलेंथ्स कंप्लीट हो रही ने 1 सेकेंड। एक सेकेंड जिन्नियां वेवलेंथ्स कंप्लीट होंदियां ने दैट इज़ नोन एज फ्रीकुएंसी। डेफिनेशन पढ़ी हुई है बेटा तुसीं, ये फ्रीकुएंसी है, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ये लाइट की फ्रीकुएंसी होगी। नंबर ऑफ वेवलेंथ्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीकुएंसी। ये फ्रीकुएंसी होगी लाइट। ठीक है, हम क्वेश्चन च आ चीज़ दी हुई है फ्रीकुएंसी। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन भी गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है बेटा 2 EV, EV नू जॉल्स च बदल लो,
1.6 10⁻⁻19 है ना, मल्टीप्लाई करके 3.2, ये आ गया वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की करनी है ना, आइंस्टाइन्स इक्वेशन लगा लो, फोटो इलैक्ट्रिक इक्वेशंस। फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होंगी है। फोटोन की एनर्जी का फार्मूला एच न्यू, वर्क फंक्शन उधर ले जाओ है ना, वैल्यूज पुट करके आंसर। एच की वैल्यू थोड़ा गिवन है 6.6 10⁻⁻34। फ्रीकुएंसी तुसी फाइंड कर लिया, देखो इन्ना वड्डे कंसैप्ट लगा के ये फ्रीकुएंसी फाइंड आउट कर ली। ओके, वर्क फंक्शन थोड़ा गिवन सीगा, इधरों प्लस सीगा, उधरली साइड जाके माइनस का हो गया, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बेटा। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6th। 6th question, ultraviolet light of wavelength 800 and 700 angstrom when allowed to fall on a hydrogen atom in their ground state। ultraviolet light एक दी वेवलेंथ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ बेटा 800 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम ਚ ਹੁੰਦਾ 10⁻10। दूसरी वेवलेंथ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 700 एंगस्ट्रॉम, 700 10⁻10 मीटर्स। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर्स ਦੇ इक्वल ਹੁੰਦਾ। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮਸ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ एनर्जी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਵੇਵਲੈਂਥ ਫਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ एनर्जी ਹੈ 1.8 EV। ਜਦੋਂ बेटा आ इलैक्ट्रॉन आ वाली वेवलेंथ फॉल करवाई गई फिर एनर्जी आई 4 EV। EV ਨੂੰ ਜਾਊਲਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1.8 1.6 10⁻⁻19 ਜਾਊਲਸ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਵੀ 4 1.6 10⁻⁻19 ਜਾਊਲਸ। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 1 EV 1.6 10⁻⁻19 ਜਾਊਲਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ EV ਤੋਂ ਜਾਊਲਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कहते प्लैंक्स कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करना है। तो बेटा जिमें पहला किया सी ना, आप आइंस्टाइन्स इक्वेशन पिक करो वेवलेंथ वाली, केड़ी वेवलेंथ वाली आइंस्टाइन्स की इक्वेशन पिक कर लो। वेवलेंथ वाली पिक करनी है, वेवलेंथ वाली पिक कर लो, नहीं तो पहली इक्वेशन ही पिक कर लो, क्योंकि इस सरफेस सेम है ना, मतलब दोनों वेवलेंथ एक ही सरफेस से फॉल करवाई ने हाइड्रोजन सरफेस से, λ1 भी λ2 भी है ना। तो यदा जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी एंड वेवलेंथ ये सेम रहेगी। तो अपनी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलैक्ट्रिक इक्वेशन, फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। फोटोन की एनर्जी का फार्मूला HC/λ, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी है ना। ये फार्मूला 2 बार लगा लो, एक बार फर्स्ट पे लगा लो, HC/λ1 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, एंड इधर लगा लो HC/λ2 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकेंड। वर्क फंक्शन दोनों बार सेम रखना है क्योंकि सेम सरफेस है, सरफेस सेम है तो दोनों बार वर्क फंक्शन सेम रहेगा। उमें माइनस कर दो बेटा, HC/λ1 माइनस HC/λ2, वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन कटा जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड। HC कॉमन आ जाएगा, 1/λ1 माइनस 1/λ2, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी सेकेंड, है ना। देखो आ वाली टर्म सॉल्व करके उधर चली जाएगी, ओके, सी नीचे चला जाएगा, एच फाइंड आउट हो जाएगा। समझ आई, मतलब इनू सॉल्व कर लो, चाहे लो एवं बना लो, HC λ2 λ1/λ1 λ2 एलसीएम ले लिया, काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2। हुण उधर ले जाओ टर्म्स, एच इधर रख लो बस कला, काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2, ओके, λ1 λ2 ऊपर, नीचे आ जाएगा λ2 माइनस λ1, सी भी नीचे आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करके एच, कैलकुलेशंस थोड़ी जी औखी है ना। काइनेटिक एनर्जी पुट करियो, फर्स्ट दी हुई है, सेकेंड दी हुई है,
सी की वैल्यू दी हुई है, λ1 दिता है, λ2 गिवन है, वैल्यूज पुट करियो रिजल्ट आ जाएगा बेटा। क्लीयर, कोई कन्फ्यूजन? पहला भी किया इस नाल दा क्वेश्चन तुसी, इस नाल दा क्वेश्चन जिहड़ा पहला सीगा क्वेश्चन नंबर 3 सीगा, इट इज़ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ठीक है, that is your question number 6th. Now we further move to question number 7th. Question number 7th. Light of wavelength 2000 angstrom falls on aluminium surface. एक aluminium surface ਦਿੱਤਾ बेटा, इस 2000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ फॉल कर रही है, वेवलेंथ ऑफ लाइट 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इन अलमीनियम 4.2 EV आर रिक्वायर्ड टू रिमूव इलैक्ट्रॉन, मतलब वर्क फंक्शन दिता है अलमीनियम चो, कहते जे तुसी इलैक्ट्रॉन बाहर कढ़ने ने तो थोनों 4.2 EV चाहिए, मतलब वर्क फंक्शन। EV च इनू जाउल्स बदल लियो बेटा, SI यूनिट्स जाउल्स होंगे ने, 1.6 10⁻⁻⁹ ओके। व्हाट इज फर्स्ट पार्ट, काइनेटिक एनर्जी है ना, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलैक्ट्रॉन, स्लोएस्ट इलैक्ट्रॉन। फास्टेस्ट इलैक्ट्रॉन मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वास्ते इक्वेशन लगा लो फिर बेटा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलैक्ट्रिक इक्वेशन, फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। फोटोन की एनर्जी hc/λ, वर्क फंक्शन उधर जाके माइनस कर देंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, वैल्यूज पुट करके आ जाएगी। बी पार्ट स्लोएस्ट मतलब मिनिमम, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी तो बेटा जीरो ही लाओगे, भी जेडे इलैक्ट्रॉन बिल्कुल भी मूव नहीं करते। सी पार्ट, वट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल करना है जो थोड़े को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसनों असी EV नोड नाल इक्वेट करके स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड कर लें, ई नाल डिवाइड करके स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। डी समझ आ गया ना बेटा। डी पार्ट है व्हाट इज द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर एल्यूमिनियम, कट ऑफ वेवलेंथ मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर एल्यूमिनियम। वर्क फंक्शन तो आ जाएगी बेटा, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू hc/λ नोड होंगे, लैम्डा नोड आ जाएगा hc/वर्क फंक्शन। इनू कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, बोथ आर द सेम थिंग। क्लियर, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें करनी है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7th। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8th। द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच एन EM wave can eject photoelectron from the surface is 195। मैक्सिमम वेवलेंथ जिस नाल इलैक्ट्रॉन इजैक्ट होंगे ने वो दी हुई है बेटा 195 नैनोमीटर, मतलब दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 195 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि फॉर फोटो इलैक्ट्रिक मिशन इस तो वेवलेंथ घट होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। ये मैक्सिमम वेवलेंथ है जिस नाल फोटो इलैक्ट्रॉन मिशन होंगी है। पता कि नहीं पता बेटा, अगर असी चाहते हैं भी किसी सरफेस चों इलैक्ट्रॉन इजैक्ट होन तो लाइट की वेवलेंथ है ना थ्रैशोल्ड वेवलेंथ तो घट होनी चाहिए है। तो लाइट की मैक्सिमम वेवलेंथ जी फोटो इलैक्ट्रिक मिशन करवाएगी दैट इज़ नोन एज लैम्डा नोड, है ना, घट होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। दसी सी ना कंडीशन, तो एक तरीके नाल कहंदे ये थ्रैशोल्ड वेवलेंथ दी हुई है बेटा आ वाली। वैन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 131 नैनोमीटर शाइनस द सरफेस, कहते जो इस सरफेस ते
131 नैनोमीटर वेवलेंथ फॉल करवाई जाएगी। 131 10⁻⁹ नैनोमीटर। वट इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इजैक्टेड इलैक्ट्रॉन? मैक्सिमम स्पीड करनी है। तो पहला तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, फोटो इलैक्ट्रिक इक्वेशन, फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होंगी है ना, फोटोन की एनर्जी hc/λ, वर्क फंक्शन hc/λ0 है ना। इतों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी काट लो, मैक्सिमम पाना होना पुत मैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी काट लो hc/λ, hc/λ0, hc कॉमन काट के 1/λ माइनस 1/λ0 सॉल्व कर लियो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी करनी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 12mv²। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगा लिया, जो वेलोसिटी मैक्सिमम होएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होएगी। इतों 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम अपॉन m द रूट करके v मैक्स आ जाएगा बेटा। दिस इज v मैक्स। काइनेटिक एनर्जी तुसीं इतों फाइंड की हुई है ना। इलैक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻31 और ये पुट करियो, सॉल्व करियो, v मैक्स आ जाएगी बेटा। समझ गए? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8th। Now we further move to question number 9th। टाइप ए 15 क्वेश्चन है बेटा, 7 रह गए, 8 हो चुके हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9th, यस, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। when eject electrons from metal surface fully stopped by retarding potential 3 volt, stopping potential 3 volt मतलब एक सरफेस है, उसते किन्ने फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करवाइए तो जो इस तो जोड़े इलैक्ट्रॉन निकलणगे, दीज इलैक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड बाय पोटेंशियल 3 volt। 3 volt इज़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाल आपां नूं दिता है फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट बिगनस एट फ्रीक्वेंसी दिस, मतलब थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6 × 10⁻14 पर सेकेंड। दिस इज थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी ते फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट स्टार्ट होंदा है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी ते फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट स्टार्ट होंदा है। थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी है बेटा, ठीक है, ये फाइंड करना है, सिंपल है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलैक्ट्रिक इक्वेशन, फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया। फोटोन की एनर्जी h न्यू, वर्क फंक्शन h/0, काइनेटिक एनर्जी दी जाएगा eV0 है ना। तो न्यू आ जाएगा बेटा h/0 प्लस eV0 डिवाइडेड बाय h, वैल्यूज पुट करके आंसर। और आपां एक वर्क फंक्शन कढ़न क्या है, वह फार्मूला आ जाएगा h/0। वर्क फंक्शन भी फाइंड करने क्या है, वो आ जाएगा h/0, फ्रीक्वेंसी इतों आ जाएगी बेटा। वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशंस कर लियो, थोड़ा काम है। क्वेश्चन नंबर 10th, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 1.8 EV। 1.8 EV कन्वर्ट कर लो बेटा जॉल्स। सीजियम का वर्क फंक्शन दिता है, लाइट ऑफ 4500 एंगस्ट्रॉम इज इंसीडेंट ऑन इट, उसते जी लाइट इंसीडेंट हो रही है 4500 एंगस्ट्रॉम वो वेवलेंथ है ना। फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलैक्ट्रॉन्स। इक्वेशन लगा लो बेटा, फोटोन की एनर्जी है ना, वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी hc/λ माइनस वर्क फंक्शन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया थोड़ा। वैल्यूज इदियां पता नहीं, थोड़ा h पता है, c पता है, वेवलेंथ गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है। सेकेंड पार्ट उन्होंने कहा मैक्सिमम वेलोसिटी
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਾਫ ਐਮ ਵੀ ਮੈਕਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ अपॉन मास द रूट। थर्ड पार्ट, if intensity of incident beam is double, intensity double करती, double, find the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons। kinetic energy कितनी हो जाएगी? kinetic energy remains the same because ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਰੋਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਜੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ, ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਨੀ ਆਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10th। Now we further move to question number 11th. Question number 11th है, find the frequency of light, light ਦੀ frequency find करनी है, which can eject electron। okay, same, question number 11th is same as that of question number 9th, same as that of question number 9th। अपने आप करिए बेटा, सेम है, ਜੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। 12th, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E ਨੋਡ ਸਾਈਨ 1.57 10 raised to power 7 10 raised to power 7 CT minus X। ठीक है, इस इक्वेशन ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਵੇਵ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ। y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ EM ਵੇਵਸ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੀਤਾ, y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਸਾਈਨ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ VT ਮਾਈਨਸ x। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ ਹੈ, 2 ਪਾਈ ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ 1.57 10 raised to 7 ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਲੈਮਡਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, 2 ਪਾਈ ਅਪੋਨ 1.57 10 raised to power 7 और वो लैम्डा आ गया। ठीक है, फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है 2.1 EV, EV ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੌਲਸ 'ਚ, ਐਂਡ ਸਟॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करना है V नोड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलैक्ट्रिक इक्वेशन। फोटोन की एनर्जी is equal to work function plus kinetic energy। फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा, वर्क फंक्शन गिवन है, काइनेटिक एनर्जी की जगह EV नोड, वर्क फंक्शन उधर ले जाओ है ना, EV नोड V नोड आ जाएगा बेटा 1/E hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। वैल्यूज पुट करके आंसर, H पता है, C पता है, लैम्डा पता है, वर्क फंक्शन पता है, E की वैल्यू पता है, वैल्यूज पुट करो, स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12th। नाउ वी फर्दर मूव टू क्वेश्चन नंबर 13th। 3 क्वेश्चन आएंगे बेटा, 13th 14th एंड 15th। ओके, फिर अपनी टाइप ए कवर हो जाएगी। वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 13th। अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस फॉल्स ऑन अ फोटो इलैक्ट्रिक कैथोड। ओके, एक सरफेस है बेटा, उस पर फोटोन फॉल कर रहे, जिहदी वेवलेंथ 3310 एंगस्ट्रॉम है, इसकी वेवलेंथ गिवन है 3310 एंगस्ट्रॉम। ओके, एंड फॉल्स ऑन अ फोटो कैथोड एंड एन इलैक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी दिस इज इजैक्टेड। इलैक्ट्रॉन जिहड़ा इमिट हो रहा है ਉਹਦੀ काइनेटिक एनर्जी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है, कितनी है बेटा? इट इज़ 3 × 10 raised to power -19 जॉल। एनी एनर्जी का इलैक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज चेंज टू 5000 एंगस्ट्रॉम, एनर्जी इजैक्टेड इज दिस। ओके, लैम्डा 1 काइनेटिक एनर्जी 1। कहते जे वेवलेंथ चेंज कर दी जाए 5000 एंगस्ट्रॉम कर दी गई, फिर जी काइनेटिक एनर्जी इमिट होंगी है
that is equal to 9.72 10 raised to minus 20. Calculate Planck's constant, threshold wavelength. Planck's constant करना है, threshold wavelength find out करनी है. This question is same. Question is same as that of question number 3rd, question number 6th. 3rd ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 6th question ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ. ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਓ ਇਸ question ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ. Question number 14th. Radiation of wavelength 180 nanometer ejects photoelectron from a plate whose work function is this. Okay. M एक surface है, surface का work function given है. वर्क फंक्शन ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 2 eV, 2 into 1.6 10 raised to minus 19 जूल. इस ते वेवलेंथ फॉल करवाई जा रही है 180 नैनोमीटर, 180 नैनोमीटर की वेवलेंथ फॉल करवा रहे हैं. ओके. फिर इस चो इलैक्ट्रॉन इजैक्ट हो रहे हैं एंड दीज इलैक्ट्रॉन्स it is placed in magnetic field. Magnetic field च placed है बेटा. मतलब जेडे इलैक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं दे मूव इन अ सर्कुलर पाथ. ये क्या उन्होंने, what should be the radius of the path followed by electron ejected normally to the plate with maximum kinetic energy. ਇਹਦਾ radius find out करना बेटा. जेडे इलैक्ट्रॉन emit हो रहे हैं बाहर है ना, वो कहते मैगनैटिक फील्ड च मूव कर रहे हैं. मैगनैटिक फील्ड गिवन है, मैगनैटिक फील्ड गिवन है 5 into 10 raised to minus 5 टेस्ला. इलैक्ट्रॉन का चार्ज पता होंगे सानू, इलैक्ट्रॉन का मास पता होंगे. ठीक है. कहते ये पाथ का रेडियस कड्डो. ठीक है. हुण बेटा जेडे इलैक्ट्रॉन बाहर निकलणगे उन्होंने काइनैटिक एनर्जी फाइंड आउट करो. पहला काइनैटिक एनर्जी किवें, इक्वेशन लगा के भी फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनैटिक एनर्जी होंगी है. फोटोन की एनर्जी HC बाय लैमडा, वर्क फंक्शन उधर ले गए माइनस करता, इतों काइनैटिक एनर्जी कट लो. फिर साइक्लोट्रॉन वाले टॉपिक यूनिट 3rd, साइक्लोट्रॉन वाले टॉपिक च भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ घूमते होंगे ने, जिमें इत्थे घूम रहे. बेटा जिमें ये वाला चार्ज पार्टिकल मैगनैटिक फील्ड च मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ, साइक्लोट्रॉन वाले टॉपिक च भी पार्टिकल मूव करते होंगे ने सर्कुलर पाथ. उत्थे काइनैटिक एनर्जी का फार्मूला आपां ने किता है एक, Q स्क्वेयर B स्क्वेयर R स्क्वेयर बाय 2m. ये फार्मूला लगाओ 2m इंटू काइनैटिक एनर्जी अपॉन Q स्क्वेयर B स्क्वेयर का रूट करके R आ जाए. काइनैटिक एनर्जी तुसीं इधरों कढ ली, मास थोनों पता है, चार्ज पता है, मैगनैटिक फील्ड पता है. ये दोनों तो रूट तो बाहर ही आ जाएंगे क्योंकि स्केयर है ना, दोनों ते स्केयर है तो रूट तो बाहर आ जाएंगे. वैल्यूज पुट करके रेडियस आ जाएगा. ठीक है. ये यूनिट 3rd च पढ़िया हुआ है साइक्लोट्रॉन वाले टॉपिक च. काइनैटिक एनर्जी का फार्मूला ये याद होवे तुहाडे. तुसीं शायद साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक किता नहीं गा क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है ना. इस तो पहला आपां ने वो वाले स्पैशल केस किए सीगे जिस च चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ च मूव करता होंगे इनसाइड मैगनैटिक फील्ड. किता सी ना टॉपिक बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैगनैटिक फील्ड. उस आपां ने दी वेलोसिटी, रेडियस सारा कुछ फाइंड आउट किया हुआ बेटा. काइनैटिक एनर्जी का रिलेशन भी फाइंड आउट किया हुआ है. चैक करियो. यूनिट 3rd चैप्टर 2nd, सेकंड टॉपिक. यूनिट 3rd चैप्टर 2nd टॉपिक सीगा, उस किया हुआ फार्मूला है. क्लियर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 15th. क्वेश्चन नंबर 15th है बेटा, द मैक्सिमम वेलोसिटीज ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आर दिस एंड दिस विद इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस एंड दिस. कहते जे मान लो वेवलेंथ 400 नैनोमीटर की यूज़ कर दो, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी V. जे वेवलेंथ 250 नैनोमीटर की यूज़ करते हो फिर मैक्सिमम वेलोसिटी 2v. इन्नी वेलोसिटी के इलैक्ट्रॉन्स इमिट होंगे ने फ्रॉम द सेम सरफेस. मतलब वर्क फंक्शन दोनों का सेम है. कैलकुलेट वर्क फंक्शन, यही फाइंड आउट करना है. सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd 6th एंड 13th.
है ना, मतलब चारे क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 6 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। दो इक्वेशनस बननगियां। इक्वेशन ਨੂੰ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈ ਲਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਬੇਟਾ क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।